वाला है और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इस बात की तफ्तीश चल रही है, धमाका किस चीज से हुआ है, फिर पता चले। आखिर आगे जांच में जो चीजें निकल कर आएंगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि एंगल क्या है, किस वजह से धमाका हुआ और क्या बड़ी वजह रही। But the pattern of the blast, the place chosen for that, the timing, and the car, and I have learned that it's an Eco Maruti car. If it is correct, I am just seen in some media. This is the same Eco Maruti car used in Pulwama blast in February 2019. दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता जीत भाटी जो वहां पहुंचने वाले पहले रिपोर्टर हैं, जो लाल किले के पास से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। जीत भाटी के पास एक बार फिर चलते हैं। हाई अलर्ट के चलते जगह जगह क्या दिखाई दे रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, क्या क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त जीत? देखिए, पुलिस ने हाई अलर्ट किया है और इस इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है पुलिस तुरंत ही जैसे खबर सर बिल्कुल सर अभी तक क्या पता लगा है सर, थोड़ा बता सर। हाँ, तो देखिए पुलिस जो है This was coming. You recall, just link it with what has been discovered at Faridabad. 2,900 kilograms of explosive, 300 to 350 RDX, and about the rest in terms of ammonium nitrate, what the Indian Mujahideen was so fond of using when they were setting up explosives in the 1990s in Delhi, Calcutta, Mumbai, Bangalore, etc., all over the country. This was coming. In fact, I had said in one of your broadcasts just this evening that the discovery of this large stockpile of explosives, Kalashnikovs and pistols is adequate to gauge Pakistan's hostile intent. It has its roots back in Kashmir. We have been following this for some time. We were congratulating ourselves that we have a major tragedy has been averted. I think we spoke too soon. I will also not jump the gun. I will wait for the outcome of this investigation because Pakistan has played its hand. Operation Sindoor is still on. And if Pakistan has a death wish, they are doing just the right things that they have to. Jalal Bakshi, I'm going to be going back to information right now, and I want to go back to the information that I have here. Home Minister Amit Shah is speaking to the Delhi Police Commissioner right now. That conversation is on. All information, there seems to be an information flow barricade right now. Now, obviously, these blasts were very, very severe in nature. I don't know if the reporters are on the ground. The moment I get an update, I'll go across to them. Can I see Ishan then if he's there? Thank you very much. If he's on a Zoom feed, can I see him, please, so that I can go across to him? Last time the audio was bad. Thank you very much. I don't have it. Okay, so please, just give me the correct information. Right now, General KK, I want to stay with the visuals out here. General KK. Ishan, thank you very much. Ishan, what are you seeing around you? Ishan, a reporter on the spot. Yeah, Ishan, stay in one location. Yeah. There have been multiple FSL teams have arrived at the spot. We have seen. Was there one blast or two blasts? Ishan, let's go to the information. Let's cut the chase. One blast or two? One blast or two blasts? Because there are some reports of two blasts. We have received information of only one blast till now. वाला है और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इस बात की तफ्तीश चल रही है, धमाका किस चीज से हुआ है, फिर पता चले। आखिर आगे जांच में जो चीजें निकल कर आएंगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि एंगल क्या है, किस वजह से धमाका हुआ और क्या बड़ी वजह रही। बिल्कुल रानू, ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में लाल किले पे धमाके के बाद मुंबई, यूपी और हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं तुम पहले बता रहा हूँ कि मुंबई, यूपी, हरियाणा, इनमें तो हाई अलर्ट काफी देर से जारी कर दिया जैसे दिल्ली में धमाका हुआ। जाहिर सी बात है, देखिए राजधानी दिल्ली से सटे हुए स्टेट हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और मुंबई में इसलिए भी जारी कर देते हैं कि देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं शहर है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है और वहां पर जिस तरीके से पहले आतंकी हमला हो चुका है तो इस लिहाज से भी मुंबई पर वैसे भी समय समय पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जगह तलाशी अभियान भी मुंबई में चलाया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर
ही नहीं, कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं, एनएसजी के कमांडो भी मौके पर मौजूद हैं और जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां कि आखिर धमाका हुआ कैसे है, वो भी राजधानी दिल्ली में पॉश इलाके में, लाल किले के पास, मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास। तो ये सब जांच का विषय है, देखना होगा। मैं वहां नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीर दिखाई है। हालांकि पुलिस यहां से हटाने का काम कर रही है, लेकिन आपको दिखा दूं तो आपको दर्जनों गाड़ी यहां पर नजर आएंगी जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है अभी, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। तो ऐसे में पुलिस कहती है कि यहाँ पर एविडेंस टैंपर ना हो। सर समझते, जिम्मेदारी को समझते हैं, आप भी काम करिए, सिर्फ लेकिन लोगों तक बात पहुंचानी है। क्या किस तरह का दिमाग उसको बता दीजिए सर, बाद में देंगे। लेट अस डू। जांच चल रही है। देखिए पुलिस भी कह रही है जांच चल रही है। और देखिए टीवी भारत पहले इकलौता चैनल जो वहाँ सायरन नजर आएंगे, सायरन किसके, पुलिस के। साथ ही साथ में जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन टीवी भारत इकलौता चैनल जो स्पॉट पे पहुंचा जहां पर ये धमाका हुआ था, इस धमाके के पीछे की वजह क्या है, इस बात की जांच अभी भी यहां पर की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली, वो भी लाल किले के ठीक सामने, इस तरीके से धमाका होना अपने आप में एजेंसीज के लिए एक संकट पैदा करने वाली बात है कि इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। क्योंकि जिस तरीके से 6 से 7 गाड़ियां तो मैंने खुद ने वहां पर गिनी है, वो उड़ी हैं। साथ में 3-4 टू व्हीलर्स थे, 3 व्हीलर्स थे, वो चपेट में आए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ शरीर के टुकड़े भी हमें नजर आए, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका कितना तीव्र था। हालांकि जो आग है उसको बुझा लिया गया है, लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, इसके पीछे क्या रसायन इस्तेमाल किए गए थे, और ये उस समय में हुआ है जब फरीदाबाद में इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। क्या उससे इसका कनेक्शन है या क्या है, तमाम चीजों को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है। आला अधिकारी आपके पास आ रहे हैं अभिलाष कुमार, डेप्यूटी फायर चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के। अभिलाष सर, पता चल रहा है कि करीब 18:56 पर आपके पास कॉल आई। कितने बजे आपके पास कॉल आई कि ऐसा कुछ हुआ है? हमारे पास 18:55 पे कॉल आई थी कि चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई धमाका हुआ है जिसमें कुछ गाड़ियों में आग लगी हुई है। उसके ऊपर हमने इनिशियली 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी और सीनियर लेवल का ऑफिसर टर्न आउट करे थे। और अभी जो है 7:29 पर ये आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, जिसमें 6 कार हैं, 2 ई रिक्शा हैं और एक ऑटो इन्वॉल्व था। जी अभिलाष जी, आप अगर हमें ये भी बता पाए कि ये सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी में धमाका हुआ है और इसके आसपास जितनी गाड़ियां चपेट में आई, क्या उनमें आग लगने के बाद कितना समय लगा काबू करने में आपको? देखिए, ये बताना मुश्किल होगा कि चलती गाड़ी में आग लगी या खड़ी गाड़ी में आग लगी। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा जो पुलिस करेगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 6:55 पे आग लगी थी की सूचना मिली थी हमें और 7:29 पर आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। पता लगाना बेहद आसान भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग मॉनिटर करते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहे थे। हालांकि ये जांच दल का विशेष अध्ययन होगा जब वो पता लगाएंगे कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, कौन सी गाड़ी थी जिसमें सबसे पहले धमाका हुआ। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 3 गाड़ियां। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई उनके चलो से, कुछ हाथ। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने अपने सामने से, अबे बहुत सारे गाड़ियां, बेटा क्या है यार, ये सिलेंडर वाला गैस होगा। बंदे बचे नहीं बचे। ये किसकी गाड़ी है भाई? किसकी गाड़ी है, एक बार बताएंगे भैया? किसकी गाड़ी है? ये इनकी गाड़ी है। बुलाना। 7 बजे की घटना है यहाँ पे, कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 3 गाड़ियां। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई उनके चलो से, कुछ हाथ। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ।
भाई गाड़ी चल रही है, पीछे हो जा भाई। तो लोग इस वक्त बता रहे हैं कि कैसे ये धमाका हुआ और एक साथ 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर उस मौके पर मौजूद है और चप्पा चप्पा हमारे कैमरे पर है। हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके चेहरे पर भी जो ब्लेड से काटने के निशान है वो भी नजर आते हैं। कई ऑटो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। दिल्ली कार धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है। ये पीआरओ एलएनजेपी के ने कहा कि 9 लोगों की अब तक मौत हुई है, यानी कि अब बहुत बड़ा ये मामला बढ़ता जा रहा है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली कार धमाके में, यानी अब जो है जांच इस बात पर की जाएगी। और जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, क्या जानकारी है? जतिन, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस धमाके के बाद जो अब तक का जो अपडेट है वो ये एलएनजेपी अस्पताल